हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी नाइका की। इस कंपनी का आईपीओ राउंड द कॉर्नर है एंड वी हैव हर्ड अबाउट दैट दिस आईपीओ वुड बी आउट सून। सो आज हम करेंगे इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस और कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये किस सेक्टर में है, क्या प्रोडक्ट्स ये पर्टिकुलर कंपनी बेचती है। At the same time, we'll try to understand whether they are cash positive or they are not cash positive, or let's say whether they are making a profits or losses. All that we'll discuss in today's video. So first of all, a small disclaimer: I'm not a SEBI registered advisor, and this video is only for an educational purpose. If you want to take positions in any of these stocks, which is discussed in these videos, please consult your financial advisor before doing that. Now, coming back to the NYKAA as a story. So NYKAA is as a company exists in the beauty and personal care sector. तो ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनी ग्रो कर रही है और ओवर द पीरियड लास्ट कुछ सालों में बहुत तेजी से एक ग्रोथ आई है इस कंपनी के अंदर। तो हम सारी चीजें एनालाइज करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड इन दिस वीडियो। Now, first thing is NYKAA story. Let's talk about how this company started, who is the promoter, and what they are doing. So first of all, NYKAA is promoted by Nair family. So Mr. Sanjay Nair, Mrs. Faguni Nair, and their two children, Anchit Nair and Adwaita Nair, are the ones who are the promoters of this company. Now, talking about how much share they have 54.25% currently the family owns, and after the IPO, they will own 51% stake. Mr. Sanjay Nair is a chairman and CEO of Indian arm of the private equity giant KKR. Mrs. Faguni Nair erstwhile was a MD at Kotak Mahindra Investment Banking. Mr. Anchit Nair, जो इनके बेटे हैं, was a VP at Morgan Stanley Equity Research, and Miss Adwaita Nair has worked with several consulting and investment banking firms. So this is the background of the family which promotes this particular company. Now, talking about the major milestones which are achieved by this company, तो 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई with the name FSN E-commerce Ventures Private Limited के नाम से। 2014 में they opened their first physical store at IGI Airport, New Delhi. Some of you who might be going to Delhi, you might have seen the store by this company. 2015 में they hosted the Femina Beauty Awards, and in 2016 first private label brand NYKAA Natural launched. In 2018 they launched another NYKAA Fashions, and in 2019 the first acquisition clothing brand 20 Dresses was launched. In 2020 they launched another private label brand NYKD by NYKAA, and 2021 they acquired a jewelry brand Pipa Bella. First multi-brand outlet for NYKAA Fashion was opened in 2021. Now let's see this industry. Let's try to understand how this industry is shaping up over the years. So if you see the CAGR which this industry is maintaining, so first of all, they belong to a beauty and personal care market. And if you see the market size in India, let me use a marker and show you this. So the India market size of a beauty and a personal care industry was 868, which has grown to 1267 billion. And over the period, there was a drop in 2020 because of COVID, which you might have seen that there is a CAGR which has suffered, and 1120 was a number which was the overall value of the market size was. And now it has grown by 12% it is expected to grow from 2020 to 2025. Expected है कि CAGR of 12% से ये particular sector grow करेगा और 1981 billion पे पहुंच जाएगा। तो ये growth है इस sector की, and anything which is above 10% growth in any sector is a huge when it comes to comparing a CAGR of different sectors. Then we talk about the overall retail industry की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दो पार्ट्स में आप रिटेल इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं। सो जो नॉन डिस्क्रिशनरी पार्ट है दैट फॉर्म्ड 68% इन 2016 और बचा हुआ 32% डिस्क्रिशनरी पार्ट था इस इंडस्ट्री का। In 2019 there is a CAGR of 11% which came in, जिसके बेसिस पे मार्केट शेयर चेंज हुआ और नॉन डिस्क्रिशनरी 67 हो गया और 33% हो गया आपका डिस्क्रिशनरी। At the same time, when we further go ahead and we see 2020 के जो numbers थे वहां नॉन डिस्क्रिशनरी 74 था और 26% हो गया था आपका डिस्क्रिशनरी। And then there is a 11% CAGR which is expected till 2025, जहां पे 66% आपका हो जाएगा नॉन डिस्क्रिशनरी एंड 34% हो जाएगा discretionary retail industry. So that is how the sector today looks like.
But when we go down and when we look at the specifically the beauty and personal care segment, now if you see over here, there is a huge change which has come in last few years. And how that change has come in: so first of all, Indian beauty and personal care industry is at a value of 54,000 crores in 2020. The market is further expected to grow at CAGR of 11%, which we discussed. So 11 से 12% के आसपास ये फोरकास्टेड है कि ग्रोथ रहेगा 2021 से 2026-25 के बीच में. नाउ अब क्यों इंक्रीज आया, क्यों इतनी तेजी से ये पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो कर रहा है? बिकॉज आपने देखा होगा, एंड even more on the e-commerce side of things, even more in terms of people have started buying things online. तो आज हम हर जरूरत का सामान हम ऑनलाइन खरीदने लगे हैं, चाहे वो थ्रू Amazon हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, एट द सेम टाइम मिंत्रा, एट द सेम टाइम नायका people are buying from. और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि there was a geo effect which came into the picture, जिसकी वजह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत वाइडली इंक्रीज हो गया हमारी कंट्री में. जीएसटी केम इन, जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगा. हर सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने मार्केट शेयर गेन करना शुरू कर दिया फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर. राइजिंग पर कैपिटा इनकम. नाउ बिकॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज राइजिंग, जिसकी वजह से जो जिस तरह के सामान ये पर्टिकुलर कंपनी बेचती है, विच इज इनटू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वहां पे स्पेंड्स इंक्रीज होते हैं और मल्टीफोल्ड इंक्रीज होते हैं. एट द सेम टाइम ये ग्रोथ और ये शिफ्ट जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट हो रहा है, ये कोविड ने और तेजी से बढ़ा दिया. सो लास्ट 2 साल में आप देखोगे तो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड ईटिंग अवे द मार्केट शेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. Now talking about future drivers, अब future drivers क्या होंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में? तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इज 20% ऑफ द एंटायर मार्केट एंड इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. Within the beauty and personal care, the online growth is much faster and 30% plus CAGR से ये ग्रोथ आ रही है. मतलब आप सोच के देखिए, 30% plus CAGR की ग्रोथ का मतलब है नियरली 3 साल, और इनफैक्ट लिटिल मोर देन 3 years में आप डबल कर रहे हैं मार्केट साइज, और जो आपकी सेल्स है वो डबल होती चली जा रही है. दैट बेसिकली शोज यू व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज. अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि आईपीओ आएगा तो कंपनी कैसा करेगी एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, बट एट द सेम टाइम अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री को भी देखें तो growth of online e-commerce with more than 30% in this particular segment of beauty and personal care itself says कि एक बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में के रूप में ये पर्टिकुलर सेक्टर उभरने वाला है या उभर रहा है as we see. So there has been a organized retail has grown by 20% and BPC, especially the beauty and personal care segment, has grown by 30% plus. What's working for e-commerce industry? Increasing trust. So सबसे पहले जब e-commerce industry start हुई इंडिया में, there was a lot of trust issues. People were not ready to buy from Amazon. लोग तैयार नहीं थे कि फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदें या स्नैपडील एक ई-कॉमर्स प्लेयर जो कि बहुत प्रेडोमिनेंट था उस टाइम पे, उससे खरीदे. तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट डेवलप होता जा रहा है और आज की तारीख में हम ज्यादातर अपनी जरूरत के सामान ऑनलाइन खरीदने लग गए हैं. ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ इनिशियली व्हेन इवन इफ यू टॉक अबाउट अमेजॉन की स्टोरी या फ्लिपकार्ट की स्टोरी को देखें तो दे स्टार्टेड एज सेलिंग बुक्स एंड ओवर द पीरियड उन्होंने क्या किया है, उन्होंने धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स इस लाइन में ऐड करने शुरू कर दिए. इनफैक्ट अगर आप एक वीडियो देखेंगे बाय मिस्टर पीटर थील, व्हाट ही सेज इज कि आपको एक पर्टिकुलर चीज उठानी चाहिए और उसको सेल करना चाहिए, उस पर्टिकुलर चीज में अपना ग्रोथ करनी चाहिए, एंड देन धीरे धीरे सेम मॉडल को आप रेप्लिकेट करते चले जाइए अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी. सेम चीज अमेजॉन ने की एक टाइम पे व्हेन दे स्टार्टेड विद बुक्स एंड ओवर द पीरियड व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने बुक्स से लेके बाकी सामान बेचना शुरू किया अपने पोर्टल के थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू, एंड उसी मॉडल को रेप्लिकेट करते चले गए. आज जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मिलते हैं वो ह्यूज है व्हेन इट कम्स टू Amazon. एंड सिमिलरली सो ऑनलाइन रिटेल में और द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं. ग्रोइंग नंबर ऑफ SKUs अगेन रिफ्लेक्ट्स टू द सेम थिंग. दैट मीन्स as the number of products are going, your SKUs are growing. So that becomes a very important driver when it comes to a e-commerce industry. Now, especially NYKAA में ऐसा क्या हुआ? So NYKAA identified a niche in the industry. अब NYKAA ने क्या देखा कि अगर आप देखेंगे इंडिया में when NYKAA started, right, and we have seen just the journey of NYKAA in 2012 जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने देखा कि जो ओवरसीज मार्केट्स में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो इंडिया में उसकी एक्सेस है ही नहीं. और बहुत ही वेरी फ्यू पीपल, राइट, एंड दैट टू इन द टियर 1 सिटीज में, जो बाहर जाते हैं, जो विदेश जाते हैं, वहां से वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, बट इंडिया में ये अवेलेबिलिटी नहीं है. तो इस निश को आइडेंटिफाई किया NYKAA के फाउंडर ने, और उन्होंने कहा कि हम वो प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाके सेल करेंगे
So that was one niche which they identified. Availability of branded products in the tier 2 and tier 3. So tier 1 में फिर भी एक्सेस है, लोग विदेश जाते हैं और वहां से प्रोडक्ट्स खरीद लाते हैं, बट इन tier 2 tier 3 में बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, and even in tier 1 also it is minimal. So they identified this niche and that's what they explored, and वहां पे उन्होंने नायका as a platform लॉन्च किया जहां से आप ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. What's working for नायका? नायका गारंटी अगेंस्ट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स. एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री को समझना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का है. बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे वो एक्चुअल ब्रांड का प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं वहां पे उन प्लेटफॉर्म्स पे. सो नायका ने क्या किया? नायका ने कहा कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट ही बेचेंगे और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, जिसके अराउंड पूरा ये मॉडल बिल्ड हुआ है, वो है नायका गारंटी. सो नायका गारंटीज एवरी प्रोडक्ट दैट यू बाय फ्रॉम द प्लेटफॉर्म दैट यू नो दिस इज अ प्योरली ऑथेंटिक प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांड. इसीलिए जो नायका का मॉडल है, हाउ दे ऑपरेट इज एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स प्लेयर. तो नायका क्या करती है? ये वेयर हाउस मॉडल में काम करते हैं, जहां पे जो आपकी फॉरेन ब्रांड्स हैं वो प्रोडक्ट्स सेल करती हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, बट ये प्रोडक्ट को पहले लाते हैं, वेयर हाउस में चेक करते हैं, देन ओनली दे डिलीवर टू देयर कस्टमर, जिसकी वजह से ये नायका गारंटी दे पाते हैं और ये कह पाते हैं कि ये 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट है जो आपने रिसीव किया है. इसीलिए इवन अगर आप कंपेयर करोगे नायका को विद अदर ई कॉमर्स प्लेयर, यू विल सी दैट द डिस्काउंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी लो. डिस्काउंट लो होने की वजह यही है कि जो भी ब्रांड से डिस्काउंट आ रहा है उसको ये पास ऑन करते हैं अपने कंज्यूमर को, बट एट द सेम टाइम दे डोंट ऑफर any massive discounts on their platform. अब ये किस तरीके से इनके फेवर में काम करता है वो हम देखेंगे in the subsequent slides, but this is how in the BPC sector NYKAA has evolved. Now let's talk about a business. If we talk about a business, तो business में क्या हो रहा है आज की तारीख में? फाइनेंशियल ईयर 20 में रेवेन्यूज जो थे इस कंपनी के वो 1850 करोड़ थे. मार्केट शेयर इस कंपनी के पास अराउंड 30% है. रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रही है 120% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 120% की ग्रोथ है, जो कि एक ह्यूज एंड मैसिव ग्रोथ है इन कंपैरिजन टू एनी बिजनेसेस व्हिच यू कैन कंपेयर इन एनी इंडस्ट्री. और ये सारा डेटा हमने रिपोर्ट बाय जेफरी से पिक किया है, वेयर वी हैव मेंशन्ड अ रेफरेंस आल्सो. One of 11 startups to become a unicorn last year. Last year ये कंपनी यूनिकॉर्न बनी और valued at 1.2 billion in March 2020. और तब इन्होंने 25 मिलियन का एक फंडिंग राउंड किया था जिसमें स्टैडव्यू कैपिटल ने इन्वेस्ट किया था. इनफैक्ट उसके बाद they have done another round at a 1.8 billion valuation. Although ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं है कि कितने का था, बट फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया. They have also raised funding from Bollywood stars. Now Bollywood stars are very important एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस, जहां पे क्या करते हैं बॉलीवुड स्टार्स के नाम से बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं जिनको नॉर्मल कंज्यूमर खरीद सकते हैं. एट द सेम टाइम दे आल्सो प्रमोट दोज ब्रांड्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो इन्होंने रेज किया था फंडिंग फ्रॉम आलिया भट्ट एंड कटरीना कैफ लास्ट ईयर. So they are also invested in the company. Now when we talk about the ownership model of FSN Ventures, तो अगर आप देखेंगे तो इनके कुछ आर्म्स हैं. First of all, NYKAA KK Beauty Private Limited, which is 51% owned by FSN E-commerce Ventures. 100% owned NYKAA Fashions है, 100% owned FSN Brand Marketing Private Limited है. This is 100% owned. FSN International Private Limited again 100% owned. FSN Brand Marketing क्या करता है? Operates the group's private brands and retail stores. So they have also launched their own private brands. अभी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी को एक ग्रोइंग इंजन दे रहा है और किस तरीके से वो हेल्प करता है in maintaining their margins when they sell products. Then FSN International 2019 में they have incorporated for international operations के लिए, जो कि 100% own किया जा रहा है आज की तारीख में FSN E-commerce Ventures के थ्रू. FSN E-commerce Ventures also owns NYKAA E-Retail Private Limited, which key operating entity operates the NYKAA Beauty E-commerce business. तो जितना भी इनका e-commerce business होता है वो NYKAA E-Retail के अंडर में है. NYKAA KK Beauty Private Limited में joint venture है between NYKAA and Bollywood actress Katrina Kaif for the K Beauty brand. तो K Beauty brand के लिए इन्होंने joint venture किया जहां 51% is owned by FSN E-commerce. NYKAA Fashion Private Limited operates NYKAA's fashion vertical called NYKAA Fashion और इसमें 100% ownership है FSN E-commerce. तो अगर आप देखेंगे सारे आर्म्स में basically 100% ownership is with FSN E-commerce, only leaving aside the 51% ownership in the K Beauty, where the rest of the part is owned by the Bollywood actors. Now this is how the current ownership of the group looks like. Now what they are doing, if you see on the right side of the slide, they are into online beauty platform, which we are aware of.
मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन द ऐप, और आप लोगों ने शायद यहाँ नायका से सामान भी खरीदा हो। तो इनका एक ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म है। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑफलाइन स्टोर्स। अब ऑफलाइन स्टोर्स इनके पास अराउंड 80 प्लस हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। उन 3 फॉर्मेट्स की भी हम बात करेंगे, जैसे नायका लक्स है, एक ऑन ट्रेंड है, और एक नायका फैशन है। नाउ क्या करते हैं उन स्टोर्स से, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, ऑफलाइन स्ट्रैटेजी इनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज Nykaa is adventuring, Nykaa is moving and further penetrating into a tier 2 and tier 3 cities. तो इनके जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो इनको दो तरीके से हेल्प करते हैं। पहली चीज तो ये वहां से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एट द सेम टाइम ब्रांड अवेयरनेस के बहुत काम आते हैं। जब ये मॉल्स में आप Nykaa के स्टोर्स देखते हैं तो आपको ये रिकॉग्निशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है जिसकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तो वो इनका ब्रांडिंग की तरह भी काम करते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प्स in making the international product reach the tier 2 and tier 3 cities of India. And धीरे धीरे as the per capita income is increasing in our country, वैसे धीरे धीरे ये tier 2 और tier 3 cities में भी international products की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। Now when we talk about their stores, so Nykaa Lux के थ्रू international brands sell करते हैं। On trend में premium and mass prestige segment है, जहां पे टॉम फोर्ड, डियोर, ये सारी ब्रांड्स ये सेल करते हैं। नायका फैशन के अंडर में ये आज की तारीख में नायका मेन ऑपरेट कर रहे हैं, और नायका फैशन के थ्रू ये फैशन या जो गारमेंट्स का बिजनेस है उसमें दे हैव वेंचर्ड। नाउ इफ वी गो फर्दर एंड इफ वी टॉक अबाउट द मोट इन द बिजनेस, आखिर इस बिजनेस में क्या मोट है, और क्यों ये किसी और लेट्स से ई कॉमर्स कंपनी की तरह नहीं है, कोई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह नहीं, क्यों नायका हमें लगता है कि एक अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो कि इंडिया में लास्ट 8 साल में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड आर रेकनिंग इज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो एज दे लॉन्च मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स एंड मोर ब्रांड्स, दे विल कीप ऑन गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस इंडिया। और अगर आप अभी भी आप देखें तो टियर 1 में इनका मेजर पेनिट्रेशन है, टियर 2 और टियर 3 में स्टिल देयर इज अ ह्यूज स्कोप, और उसके बाद दे कैन फर्दर वेंचर आउट इन द फर्दर टियर्स ऑफ द कंट्री। Now, when we talk about the moat in the business, their real moat is not the products which they sell. जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं वो इनका मोट नहीं है, जो इनका मेन मोट है वो है कंटेंट। नायका ने एक ऐसा कंटेंट इकोसिस्टम बना दिया है जिसके थ्रू दे कैन सेल ऑन देयर प्लेटफॉर्म, दे आर सेलिंग ऑन इंस्टा, दे आर सेलिंग ऑन देयर ऑफलाइन स्टोर्स, बिकॉज इतने सारे एक नायका कंटेंट की एक आर्मी है जिसके थ्रू ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स की पूरी एक आर्मी है जो हेल्प करती है नायका को इन टर्म्स ऑफ गोइंग and in their outreach to the entire population of a country or majority of the population of a country. So इनका जो content ecosystem है, 15 to 20% beauty content जो है YouTube पे, वो that comes from the Nykaa और नायका के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू। नायका हैज अ नेटवर्क ऑफ 1363 इन्फ्लुएंसर्स एज ऑफ मार्च 31st 2021। नाउ बेसिकली आप ये समझिए कि इंडिया में इनसे ज्यादा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर स्पेसिफिक सेक्टर में किसी के पास भी इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की टीम नहीं है। तो जो इनका नेटवर्क है, दैट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क व्हेन इट कम्स टू अ इन्फ्लुएंसर। सो नायका, although no matter how much we say that it's a beauty and personal care product company, but actually behind the curtain or behind the scene, it is actually a content which helps them in becoming number one, or becoming or figuring out in the top in their particular business. They don't offer customer discounts, और ये बहुत बड़ी चीज है अगर आप देखें फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। विदाउट ऑफरिंग कस्टमर डिस्काउंट्स आप अपने बिजनेस को ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। लास्ट 3 से 4 साल में अगर आप देखें 120% की ग्रोथ लाना is huge, and that has only come because they have a leadership in the content which is there on YouTube and other social media channels. Promotions are funded by the brands. तो नायका अपनी तरफ से वो पैसा नहीं खर्च करता है when it comes to discounts या deep discounting हो रही है या प्रमोशंस हो रहे हैं, दैट इज डन बाय द ब्रांड्स। तो सबसे बढ़िया चीज इस पर्टिकुलर मॉडल में, और हम बात करते रहते हैं कि ऐसा बिजनेस लेना चाहिए जहां मोट हो, जहां पे एक स्पेसिफिक मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए उस बिजनेस के पास। तो इनके इन्फ्लुएंसर्स होना, ये कोई डिस्काउंट नहीं देते, स्टिल इनके लॉयल कस्टमर्स हैं। एट द सेम टाइम जो प्रमोशंस है उसके लिए भी ये पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैश फ्लो पॉजिटिव है। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस एज वी गो फॉरवर्ड, बट नेट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी ये बन पाए हैं बिकॉज इन्होंने अपनी जेब से या कैश बर्न नहीं किया, जो कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर्स आज की तारीख में कर रहे हैं। नाउ नायका नेटवर्क, इफ यू सी, इज अ कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
अब ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह, अगर आप इस पे जाएंगे भी तो आप देखेंगे जैसे फेसबुक है या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी की तरह दिखेगा, बट देयर इज अ रियल स्ट्रेंथ विच लाइज बिलो इट। सो इसकी अगर आप रियल स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ यूजर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं एक दूसरे से, एट द सेम टाइम दे कैन बाय प्रोडक्ट्स। तो आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां पे अगर यूजर आता है और इंटरेक्शंस होती हैं, और लेट्स से मैं किसी को कहता हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, then that person can buy from the same platform without going out of that platform itself। एक कस्टमर सामान खरीद सकता है नायका से, जो जो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस। नाउ मूविंग अहेड, इफ वी सी how they operate this whole ecosystem, so NYKAA Army, this is a team of NYKA's employees who create beauty and fashion content on the platform in 7 languages। 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में टारगेट करते हैं डिफरेंट पीपल इन द कंट्री को, और ये अपने प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। देन नायका एफिलिएट प्रोग्राम, नाउ व्हाट इज दैट, अनेबल्स एक्सटर्नल कंटेंट क्रिएटर्स, सिर्फ इंटरनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नायका आर्मी वो है जो इंटरनल एम्प्लॉइज है नायका के, जो कि ये ब्रांडिंग या ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। देन दे हैव नायका एफिलिएट प्रोग्राम, जहां पे एक्सटर्नल कंटेंट क्रिएटर्स को एनेबल करते हैं दैट दे कैन पब्लिश कंटेंट ऑन नायका's बिहाफ। नेटवर्क ऑफ 1363 इन्फ्लुएंसर्स एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, जो हमने अभी बात की थी। तो ये नायका एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू जो एक्सटर्नल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, वो लोग भी नायका से जुड़ जाते हैं और वो भी नायका के बिहाफ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं और पब्लिश करते हैं ऑन सोशल मीडिया चैनल्स। नायका टीवी, अ यूट्यूब बेस्ड प्लेटफॉर्म विद 1.3 मिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट। आप सोच के देखिए 1.3 मिलियन आवर्स ऑफ कंटेंट, दिस इज ह्यूज बाय एनी फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एंड 1.1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। आज मार्च 2021 के नंबर्स हैं, जब नायका टीवी के 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते थे, एंड ये नंबर इवन फर्दर ग्रो हुआ है, और 1.3 मिलियन आवर्स का कंटेंट है अबाउट नायका, एंड दैट defines why they are number one when it comes to the, or what is the kind of competitive advantage they carry today। NYKAA network peer-to-peer social community है with 3.1 million members as on March 21। NYKAA beauty book, NYKA's own beauty and fashion blog with 598 articles published। Explore, an in-app content aggregation hub which enables a consumer to watch content and shop for the products featured in the content in real time। तो आपने तभी एक प्रोडक्ट देखा और अब तभी आपने सोचा कि उसको खरीदना चाहिए, तो आप वहीं उसी प्लेटफॉर्म के अंडर में, विद इन एक्सप्लोर के प्लेटफॉर्म में आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज when you see the consumer journey or a buyer journey for that matter, तो जब सबसे ज्यादा engaged होता है buyer in knowing about a product और उसको features पसंद आ रहे हैं, अगर उसी टाइम पे आप sell कर सकते हैं उस product को उस customer को, तो उसकी buying probability बहुत तेजी से increase हो जाती है। तो all these factors actually gives a lot of competitive advantage to NYKAA barring any other e-commerce platform which we have in the country। अगर आप देखें तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से NYKAA के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंटेंट इंजन है जो रन करता है, जहां पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कंटेंट बार बार बनाते जाते हैं, एट द सेम टाइम पब्लिश करते रहते हैं ऑन NYKA's बिहाफ। देन मूविंग अहेड, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ let's say what they are launching now, तो अगर आप देखेंगे तो NYKAA में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड रिटेल शेयर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 29% 2016 से 38% हो गया है आज के इन 2019, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। Now if we talk about NYKAA, what they are doing today, if you see over here, these are the ones what NYKAA is selling। So NYKAA Men के through a gadgets, tech accessories, personal care, fashion, health, focusing on men, they have started a new line of business। Then the global store actually sells all the global brands on it, where people can buy the luxury foreign brands from the global store। Then we have a NYKAA Pro। NYKAA Pro is a membership program for beauty professional and a makeup artist। So they are not only creating the content creators, but they also have जो beauty professionals हैं और जो makeup artist हैं, वो इनके flag bearers बनते हैं in the country, so that they talk about their products, talk about what is available on NYKAA, what are the things which people can buy, what are the beauty products which are available overseas। क्योंकि जब NYKAA ने ये overseas products इंडिया में लॉन्च करने शुरू किए, तो एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी ब्रांड्स को जो विदेश में हुआ करती थी उनको नहीं जानते थे। तो उसके लिए इन्होंने NYKAA Pro एक पर्टिकुलर प्रोग्राम शुरू किया, जो कि मेंबरशिप प्रोग्राम था, जहां ब्यूटी प्रोफेशनल्स और मेकअप आर्टिस्ट जुड़े, और उन्होंने इसको फर्दर
आगे कंट्री में स्प्रेड करना शुरू किया. सुपर स्टोर, नायका wants to sell BPC products to select offline and local retailers. So they have also got into a B2B now, और सुपर स्टोर के थ्रू ये B2B सेल कर रहे हैं. And then they are now launching a private label. Now everyone of you जिसने भी कभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को थोड़ा पास से पढ़ने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि मार्जिन एक कंपनी के बहुत तेजी से ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं जब वो अपनी लोकल और सॉरी नॉट लोकल बट अ प्राइवेट लेबल लॉन्च करता है. नायका हैज लॉन्च्ड इट्स ओन प्राइवेट लेबल्स, और उसकी वजह से मार्जिन इस कंपनी के फर्दर इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड एज दीज लेबल्स ग्रो ये फर्दर भी इंक्रीज करते जाएंगे. Now talking about financials, let's talk about numbers. थोड़ा समझते हैं कि numbers के basis पे अब ये कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है, मार्केट में let's say मार्केट भी ग्रो कर रहा है और एक्सपेक्टेड है 30% से ग्रो करेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, दे हैव इन्फ्लुएंसर्स विद देम. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं देन एनी हाउ हमारा इंटरेस्ट एज इन्वेस्टर्स कम हो जाता है किसी भी कंपनी के अंदर. Now what you see over here, the EBITDA margin जो नेगेटिव हुआ करती थी 2017 में, that has gone above 5% now and it has turned positive. बहुत रेयर किसी ई कॉमर्स कंपनी में हमें देखने को मिलता है कि उसकी जो मार्जिन हैं, जो EBITDA मार्जिन है, that has turned positive. बहुत सारी कंपनीज आज भी स्ट्रगल कर रही हैं जस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव होने में, बट this is the company which is giving a EBITDA margin positive in the e-commerce space. और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट्स नहीं दे रहे हैं, ब्रांड का जो डिस्काउंट आता है ये फर्दर पास ऑन करते हैं अपने कंज्यूमर्स को. अगर आप इसके रेवेन्यू सीएजीआर की बात करें, 84% का सीएजीआर है फ्रॉम 2017 से 2021 के बीच में, which you can clearly see here. It was sub 5 billion and now it is touching around 25 billion. That shows ki what is the kind of a growth this company has shown, and in fact it's growing. It has, year on year they are increasing these numbers. OCF और FCF का जो रेशियो है, जो आपके इस कंपनी ने जो दिखाया है, अगर आप यहाँ देखें फाइनेंशियल ईयर 19 के और फाइनेंशियल ईयर 21, तो ये कैश फ्लोज भी इस कंपनी के पॉजिटिव हो गए हैं. सो कैश फ्लोज पॉजिटिव कंपनी ई कॉमर्स स्पेस में मिलना बहुत रेयर देखा जाता है. टॉकिंग अबाउट अ पैट, तो लॉस मेकिंग था फाइनेंशियल ईयर 17 में, 20 तक लॉस मेकिंग था, 21 में एक बहुत तेजी से ग्रोथ आई और प्रॉफिट आया इस कंपनी का, और पैट पॉजिटिव हो गया है इस कंपनी का, विच इज अ वेरी गुड साइन. ऑब्वियसली हमें गोइंग फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसा ये पैट रहता है, बट एट द सेम टाइम करंटली इट लुक्स इन अ वेरी गुड शेप, एंड विद द लॉन्च ऑफ द प्राइवेट लेबल्स एज वी हैव टॉक्ड अबाउट, हम हो सकता है ये कंपनी फर्दर और तेजी से अपने पैट को ग्रो करे. Now when we go to a total debt reduce हो रहा है कंपनी का. 2020 में बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था बिकॉज इन्होंने 2-3 नई चीजें लॉन्च की. 2021 में वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है. इनफैक्ट वो फाइनेंशियल ईयर 19 के नंबर्स से भी कम हो चुका है. Now when we talk about further and we talk about revenue from marketplace services has increased for the company in financial year 21 में आप देखोगे तो एक ड्रास्टिक इंक्रीज है मार्केट प्लेस रेवेन्यूज में. यहाँ पे मोर और लेस स्टैग्नेंट था, बट देयर इज अ सडन इंक्रीज. नेट डेट हैज रिड्यूस्ड शार्पली एज यू माइट हैव सीन, क्योंकि कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है, तो अगर आप नेट डेट देखें तो काफी तेजी से रिड्यूस हुआ है ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 1 ईयर में. अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इसमें रिडक्शन आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क. तो बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के, एट द सेम टाइम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन देयर आर रिस्क इन द बिजनेस, और हम चाहते हैं इन्वेस्टर्स आप रिस्क को भी ध्यान रखें जब कोई किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें. तो ऑब्वियसली दिस इज मोर फॉर द एजुकेशनल पर्पस दैट वी आर टेलिंग यू हाउ द कंपनी इज डूइंग टुडे, बट आप अपनी रिसर्च करिए, कंपनी के बारे में पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करें. बट टू हाईलाइट द रिस्क, तो सबसे पहला जो रिस्क है वो रेगुलेशंस का है. व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट कि जो प्राइवेट लेबल्स हैं जो कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैं, उसको उसके अगेंस्ट, और या आप कह सकते हैं उसके अराउंड बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स आ रहे हैं अराउंड रेगुलेशंस ऑफ दोस. सो सिक्योरिटी फॉर स्क्रूटनी फॉर सेलिंग प्राइवेट लेबल्स मर्चेंडाइज, एंड गवर्नमेंट माइट बैन प्राइवेट लेबल्स. नाउ अगर ऐसा हो जाता है तो उसके इसमें बहुत रिस्क है कंपनी के प्राइवेट लेबल्स को, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो सकता है कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड, या फिर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ आ सकती है कंपनी के अंदर. तो उस चीज को हमें ध्यान रखना होगा. बट अगेन नायका हैज बीन देयर फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स, वी हैव सीन द लीडरशिप, और वो केपेबल हैं शायद ऐसे किसी भी सिनेरियो को हैंडल करने के लिए. और लाइक वी से राइट, इफ यू टॉक अबाउट एनी गुड ऑपरेटिंग कंपनी इन द कंट्री, और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं मार्केट में, बहुत फ्यू हैं जहां पे
जो कैश फ्लो वाइज पॉजिटिव हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा देती हैं। तो अगर उनके लीडरशिप आप देखेंगे तो वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ रिस्क आता है तो दे नो हाउ टू further launch new products or get into a similar stream of businesses so that they can handle that impact. So एक ये रेगुलेशन रिस्क जरूर रहेगा इस कंपनी में। दूसरा रिस्क रहेगा इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। On the again on the private label side, company owns a portfolio of 13 private label brands as of 2021. So ये एक रिस्क है। सेकेंड रिस्क है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। सो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अगर आप देखें तो मिंत्रा ने भी पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट किया कि वो भी इस स्पेस में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल है उस पर्टिकुलर स्पेस में आना चाहते हैं, एंड दे विल आल्सो स्टार्ट डूइंग इट थ्रू देयर वेयर हाउसेस, सो दैट एंड they are also planning to include more categories in what they are selling today. So Myntra से एक बहुत एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव रिस्क आप कह सकते हैं इस कंपनी को है। दूसरा है पर्पल। नाउ देयर आर डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर बीइंग लॉन्च्ड इन द सिमिलर सेगमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर कंपनी को देखते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है तो देयर आर कॉम्पिटिटर्स, देयर इज बाउंड टू बी अ कॉम्पिटिशन। तो पर्पल एक कंपनी है जो कि सिमिलर बिजनेस मॉडल के साथ आज मार्केट में है। पर्पल हैज ऑलवेज लेग्ड बिहाइंड नाइका इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, बट द लेटेस्ट राउंड हैज बीन एन एक्सेप्शन। तो अगर लेटेस्ट राउंड आप पर्पल का देखेंगे तो पर्पल का जो लेटेस्ट राउंड है वो 30 का था, $30 मिलियन का, while when we talk about नाइका it was 14. So over the period अगर आप देखेंगे नाइका ने बहुत तेजी से पैसा पिक किया है मार्केट से और फंडिंग हुई है कंपनी में, बट लास्ट राउंड जो हुआ है 30 मिलियन का पर्पल में हुआ है, 14 मिलियन नाइका में। बट दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड ऑल्सो बिकॉज क्योंकि नाइका आज कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई है, एट द सेम टाइम दे आर डूइंग अ गुड बिजनेस और दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद द आईपीओ सून, सो that is considerable. But at the same time पर्पल या ऐसी कोई भी कॉम्पिटिटर्स, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन टर्म्स ऑफ हाउ दे इवॉल्व। आज अगर आप देखें तो कंप्लीट मार्केट डोमिनेंस है नाइका के पास, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना होगा हाउ दे पोजीशन देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर कॉम्पिटिटर्स। सो this is on the risk side. This is what we had around नाइका today। और आज हमने बात की कि नाइका का जो आईपीओ आने वाला है, हमने कोशिश किया कि आपको समझा पाए कि कैसा बिजनेस है, क्या ये कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और क्या इसके कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स हैं एज वी गो फॉरवर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एट द सेम टाइम हमें कमेंट्स में बताएं किस तरह की वीडियो और किस पर्टिकुलर स्टॉक पे या किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। नाउ वी हैव आल्सो स्टार्टेड न्यूज़लेटर्स। तो अगर आपको हमारा न्यूज़लेटर चाहिए जो कि फ्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक्स, फ्यू बुक्स भी रीड, और अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे ये जर्नी करनी चाहिए उसमें काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप हमें ईमेल करें ऑन investormusings&learnings@gmail.com पे और हम आपको एनरोल कर देंगे अपने न्यूज़लेटर प्रोग्राम के अंदर, और एवरी मंथ यू विल गेट अ न्यूज़लेटर फ्रॉम अस। If you like this video, please subscribe it. And a disclaimer in the end, I am not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational and informational purpose only. Thank you so much for joining us today. हम बहुत जल्दी एक अगला वीडियो किसी और स्टॉक पे, किसी और बिजनेस पे लेके आएंगे। Thank you so much.